Good morning, students of class 6. All students, very good morning. I wish you all a very good morning. Today our topic is in English literature, lesson number 7. I am going to explain you in Hindi. My computer at my homework. It is the chapter, the name of the chapter number 7. My computer at my homework. The writer tries to explain in this poem that the computer at the homework of the poet. It means whatever the poet typed in the computer, everything was missing. So where did it go? All the homework was done by the poet in the computer, was saved by the poet in the computer. It was the fault of the poet. Due to the fault of the poet, because poet had pressed the wrong button, the homework was not saved. It was removed. It was gone. So everything was gone in vain. Everything was spoiled. So it was the mistake of the poet, but the poet was a small child. That's why he was not able to understand that he was not accepting his mistake. It was my mistake. Due to my mistake, my homework, what I did in the computer, it was gone somewhere. It was removed by me. So, what is the story? What is the poem? What does the poem say? My computer at my homework. In real manner, I explain you. Stanza by stanza, I will explain you. So, we start with the first stanza. What is the real meaning of first stanza in Hindi? I will explain you in Hindi. But I will also take the help of the English to explain you. Because in English, you must be learned, you must be understood, because it is not a Hindi medium class, it is an English medium class, but you are very small. If I explain you in English to English only, so it is not possible for you to understand each and every word, each and every line, each and every stanza. So for you, it is must to explain you in Hindi also. So I will take the both language, Hindi as well as English. So we start with the first stanza. So my computer at my homework with the first stanza. In first stanza with the first line, my computer at my homework means मेरे कंप्यूटर ही मेरा सारा होमवर्क खा गया. उसने क्या किया? वो क्या सोच रहा है? वो बच्चा है, वो कंप्यूटर सब खा गया. कंप्यूटर एट एवरीथिंग, एवरी माई होमवर्क. यस इट ट्रबल सम बट ट्रू. हाँ, ये तो ट्रबल सम मतलब संघर्ष, ये मतलब दुविधा में डालने वाला है, परेशानी में डालने वाला है मुझे, लेकिन ये सच है. क्या परेशानी में डालने वाला है? व्हाट इज ट्रबल सम, व्हाट इज ट्रू? इट इज ट्रू दैट माई कंप्यूटर एट माई होमवर्क. यही सच है कि मेरे कंप्यूटर ने ही मेरे सारे होमवर्क को, मेरे काम को खा लिया. मतलब मेरे कंप्यूटर में सारे होमवर्क को खा लिया. ये बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन सच है. दो इट डिड नॉट ग्रॉ और निबल, ये तो उसे चबाया भी नहीं. जिना मतलब चबाना. निबल मीन्स भी होता है उसको चबाना. निबल मीन्स भी क्या होता है? टू बाइट इन बीट्स, टुकड़ों टुकड़ों में खाना. न तो उसने उसे चबाया, न तो टुकड़ों टुकड़ों में खाया. तो हाउ डिड ही ईट द माई ऑल होमवर्क? तो कैसे उसने सारे मेरे होमवर्क को खा लिया? एंड इट डिड नॉट चॉम्प और च्याउ. च्याउ मतलब क्या होता है? चबाना. चॉम्प मतलब भी वही होता है. वो कोई चबाया भी नहीं. मतलब थोड़ा सा बच्चे वाली बात है, तो बच्चा इसी अंदाज में बात करता है. हाउ द चाइल्ड टॉक इन हिज चाइल्डिश मैनर. तो व्हाट इज द चाइल्डिश मैनर?
कि खाने का यहाँ मीन्स है कि कंप्यूटर ने खा लिया। वो कंप्यूटर को एक आदमी जान रहा है, इंसान कैसे चबा के खाता है, टुकड़े टुकड़े करके खाता है, तो उसी तरह से वो कंप्यूटर को जान रहा है कि वैसे उसने हमारे होमवर्क को खा लिया है। लेकिन उसको ये परेशान कर रहा है, सच है कि होमवर्क खा लिया कंप्यूटर ने, लेकिन परेशान ये कर रहा है कि ना तो उसने चबाया, ना तो उसने टुकड़ों टुकड़ों में खाया, तो आखिर खाया कैसे। तो पहले स्टेंजा का मतलब यही था कि मेरे कंप्यूटर ने मेरे होमवर्क को खा लिया, और ये वास्तव में बहुत परेशान करने वाला है। सच है कि उसने खा लिया क्योंकि मेरा वर्क मुझे मिल नहीं रहा है। आई डिड नॉट फाइंड माई वर्क इन कंप्यूटर, वेयर इज इट एक्चुअली माई कंप्यूटर एट माई होमवर्क, बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? इट डिड नॉट जिनो और निबल, इट डिड नॉट चॉम्प और च्याऊ। ना तो उसने चबाया, ना तो उसने टुकड़ों टुकड़ों में खाया, ना टुकड़े टुकड़े पीसेस किए, तो खाया कैसे? यही सब बात थी। इट डाइजेस्टेड। अब सेकेंड स्ट्रेंजा, नाउ वी विल सी सेकेंड स्ट्रेंजा, व्हाट द सेकेंड स्ट्रेंजा से। इट डाइजेस्टेड इट कंप्लीटली। नाउ द पोएट सेड कि अब उसने उसको पूरी तरह से पचा लिया। इट डाइजेस्टेड, व्हाट डाइजेस्टेड? द वर्क, माई होमवर्क डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड बाय हूम? डाइजेस्टेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा मेरे वर्क को पचा भी लिया गया है, खा तो लिया है, उसको पचा भी लिया। पचाना, डाइजेस्ट मतलब होता है पचाना। इट कंज्यूम बाय होमवर्क होल। उसने मेरे सारे होमवर्क को, कंज्यूम मतलब उपभोग कर लिया, खा लिया, पूरा का पूरा, होल मतलब सारा का सारा। व्हेन आई प्रेस द शिफ्ट एंड एंटर की, जैसे ही मैंने अपने होमवर्क को करने के बाद, अब कंप्यूटर में हमें उसको सेव करना होता है, तो मैंने जैसे ही एंटर और शिफ्ट और एंटर का बटन दबाया, किसका बटन दबाया? आई प्रेस्ड एंटर एंड शिफ्ट, शिफ्ट एंड एंटर। मैंने किसका बटन दबाया? शिफ्ट और एंटर का। जैसे ही मैंने बटन दबाया, वो सारा होमवर्क मेरा उसने खा लिया। इसकी बजाय कि मुझे कौन सा बटन दबाना चाहिए था? शिफ्ट और कंट्रोल। शिफ्ट और कंट्रोल का बटन यदि मैंने दबाया होता, इफ आई वुड हैव प्रेस्ड शिफ्ट एंड कंट्रोल बटन, it would not gone everywhere. If I pressed shift and control button, it would not go anywhere. It would be here. But what was my fault? मैंने क्या किया? मैंने shift और enter का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर ने मेरे सारे होमवर्क को क्या किया? खा लिया। तो मुझे इसकी जगह शिफ्ट और कंट्रोल दबाना चाहिए था। ये सेकेंड स्ट्रेंजा आप कह रहा है। सेकेंड स्ट्रेंजा, पहले स्ट्रेंजा में क्या कहा? कंप्यूटर ने मेरे सारे वर्क को काट लिया, ठीक है। अब ये मेरे लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी, लेकिन यही सच है कि उसने खा लिया। ना तो उसने टुकड़ों टुकड़ों में खाया, ना उसने जैसे हम लोग खाना खाते हैं चबा चबा के वैसे खाया, तो आखिर उसने कैसे खाया? दूसरे स्ट्रेंजा में था कि अब उसने मेरे सारे होमवर्क को पचा लिया, जो भी उसने खाया था पचा लिया। उसने मेरे सारे होमवर्क को कंज्यूम कर लिया, मतलब उपभोग कर लिया, ठीक है। कब उपभोग कर लिया? जब मैंने शिफ्ट और एंटर का बटन दबाया, तो उसने सारा मेरा होमवर्क खा लिया। इसकी बजाय कि मुझे कौन सा बटन दबाना चाहिए था? शिफ्ट और कंट्रोल का बटन दबाना चाहिए था। तीसरे स्ट्रेंजा में इट डिवाउर्ड माई आवर्स ऑफ टाइपिंग। डिवाउर्ड मतलब होता है व्यर्थ कर देना, बेकार कर देना, यूजलेस कर देना। एट वेरी फास्ट, डिवाउर्ड का मतलब होता है एट वेरी फास्ट। उसने मेरे सारे होमवर्क को बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। मेरे घंटे भर की टाइपिंग को मैंने घंटे भर लगा दिया था। आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू टाइप माई होमवर्क। आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू टाइप माई होमवर्क, बट द कंप्यूटर डिड नॉट वेस्ट ए सिंगल टाइम एंड इट एट माई होल होमवर्क इन फ्यू सेकेंड। मैंने घंटों घंटों मेहनत करके टाइप करके होमवर्क तैयार किया था, लेकिन उस कंप्यूटर को एक क्षण भी नहीं लगा, उसने मेरे सारे होमवर्क को बर्बाद और जल्दी जल्दी खा लिया। एवरी पिक्चर, चार्ट एंड ग्राफ, मैंने जितने भी पिक्चर बनाए थे, चार्ट मैंने तैयार किए थे, ग्राफ मैंने बनाए थे, सारा कुछ खा लिया। एंड इट लेफ्ट मी मोस्ट अनसेटल्ड, और उसने मुझे अब अनसेटल्ड कर दिया, मतलब अब मैं सब पूरी तरह से मेरा ध्यान भंग हो चुका था। अब मैं सेटल्ड होना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, मुझे अस्थिर कर दिया था उसने। किसने? उस कंप्यूटर ने, क्योंकि उसने मेरे सारे होमवर्क को
खा लिया, मेरे सारे मेहनत को बर्बाद कर दिया। इट स्पॉइल्ड माई एवरी हार्ड वर्क। इट एट पिक्चर, ग्राफ, चार्ट, एवरीथिंग इन ए सेकेंड। Whatever I worked hard in computer to type my homework, it ate everything and it spoiled my each and every type of hard work. तो उसने मेरे सारे कठिन परिश्रम को बर्बाद कर दिया था। When I thought I heard it laugh. जब मैं इसके बारे में सोचा तो मुझे हंसी आई। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे हंसी आई। सोचा और इसके बारे में मैंने सोचा और सुना तो मुझे हंसी आई, हंसने का मन करा। अब तीसरे स्ट्रेंजा में क्या कहा, ठीक है, उसने कहा कि मैंने जितना भी घंटे मेहनत किया था उस कंप्यूटर ने क्या किया, जल्दी जल्दी सब खा लिया, बर्बाद कर दिया। एक तरह से उसको ये भी कह सकते हैं, इट स्पॉइल्ड एवरीथिंग, एवरी माई हार्ड वर्क। ठीक है, मेरी हर एक पिक्चर जो मैंने तैयार की थी खा लिया, हर एक चार्ट जो मैंने मेहनत से तैयार किया था खा लिया, और हर एक मेरा ग्राफ जो मैंने मेहनत से कंप्यूटर में बनाया था सब खा लिया। मेरे घंटे भर की टाइपिंग को उसने, इट स्पॉइल्ड एवरीथिंग, हमारी आवर्स एंड आवर्स हार्ड वर्क। इट लेफ्ट मी मोस्ट अनसेटल्ड, उसने मुझे कैसा छोड़ दिया, इट लेफ्ट मी अनसेटल्ड, उसने मुझे अस्थिर कर दिया था। आई वॉज नॉट देन आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, आई वॉज आउट ऑफ माइंड, मैं दिमाग से बाहर हो चुका था। When I thought I heard it laugh, whenever I thought about this coincident, and I heard about this coincident, I laugh. जब मैं इसके बारे में सुनता था या जब इसके बारे में मैंने सुना, मैंने सोचा, मुझे हंसी जैसा हुआ। कैसा हुआ, हंसी जैसी मुझे आई। क्यों, उसने मेरे सारे होमवर्क को क्या किया था, खा लिया था। Now we will see fourth stanza. I would guess it was a virus. उसके बाद उसने सोचा फोर्थ स्ट्रेंजा में कि आखिर कंप्यूटर में है क्या, वॉट वॉज एक्चुअली इन द कंप्यूटर, वाई कंप्यूटर एट एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन आई थिंक, आई वुड गेस इट वॉज ए वायरस। जब मुझे ये पता चला तो मैंने एक अनुमान लगाया कि हो सकता है ये कोई वायरस था। ठीक है, और इट कुड हैव बीन ए वॉर्म, या ये हो सकता था, इट कुड हैव बीन ए वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, हो सकता है कंप्यूटर के अंदर कोई कीड़ा हो जिसने मेरे होमवर्क को खा लिया। दैट डिलीटेड एवरी बाइट, जिसने मेरे हर एक काम को मिटा कर रख दिया। बट डिड नॉट प्रॉम्प्ट मी टू कन्फर्म, लेकिन ये मैं अपने आप को, प्रॉम्प्ट का मतलब आपका होता है टू इंसाइट और मूव टू एक्शन, लेकिन ये मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि अपने आप को कन्फर्म, सुनिश्चित करने के लिए इसमें कोई वायरस ही हो या कुछ हो। ठीक है, इससे मैं अपने आप को सुनिश्चित नहीं कर सकता, दिलासा नहीं दिला सकता। आई कैन नॉट कन्फर्म, आई कुडंट कन्फर्म माई सेल्फ, ठीक है, टू मूव एन एक्शन, कि इसमें कोई वायरस ही हो। ठीक है, तो अब फोर्थ स्ट्रेंजा में क्या कहा, कवि वुड गेस, द पोएट वुड गेस दैट इट वॉज ए वायरस, कि उसने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई वायरस था। विच एट माई होमवर्क इनसाइड द कंप्यूटर, तो हो सकता है कंप्यूटर के अंदर रह के उसने मेरे सारे वर्क को खा लिया हो। ठीक है, और इट कुड हैव बीन ए वॉर्म, या ये हो सकता था कि कोई कीड़ा हो कंप्यूटर के अंदर जिसने मेरे होमवर्क को खाया हो। दैट डिलीटेड एवरी बाइट, जिसने मेरे हर एक काम को, जो भी मैंने लिखा था उसको उसने मिटा दिया। डिलीटेड मतलब मिटा देना, रिमूव, इरेज। बट डिड नॉट प्रॉम्प्ट मी टू कन्फर्म, लेकिन कोई ऐसा, मैं किसी ऐसे कार्य की तरफ नहीं बढ़ा जिससे मुझे कन्फर्म हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि वही उसमें था। अब फोर्थ स्ट्रेंजा में जो है, फोर्थ स्ट्रेंजा में आई सपोज आई माइट हैव प्रेस्ड एस्केप। अब मैं ये अनुमान लगाता हूं कि आई माइट हैव प्रेस्ड एस्केप, कि हो सकता था कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे एस्केप का बटन दबाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग सेव। प्रेसिंग सेव के बजाय मुझे दबाना चाहिए था एस्केप का बटन। ठीक है, बट रिगार्डलेस माई कंप्यूटर नाउ विल नेवर बिहेव, लेकिन इसके बावजूद मेरे कंप्यूटर ने कभी ऐसा मेरे साथ बर्ताव नहीं किया होगा, नहीं करेगा। बट इस सबके बावजूद मुझे लगता है कि इस कंप्यूटर मेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। अब पांचवें स्ट्रेंजा में इसने क्या कहा कि मैंने जो बटन दबाया उसके बजाय, मतलब मैंने एस्केप का बटन मुझे दबाना चाहिए था, इसके बजाय कि मैं
सेव का बटन दबाऊं। सेव का बटन दबाने के बजाय मुझे इंस्टेड ऑफ आई प्रेस सेव बटन आई माइट हैव प्रेस्ड एस्केप, कि मुझे एस्केप का बटन दबाना चाहिए था इसके बजाय कि मैं सेव का बटन दबाऊं। बट रिगार्डलेस माई कंप्यूटर नाउ विल नेवर बिहेव, लेकिन अब मेरा कंप्यूटर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। और आई फाउंड ए गुड सोल्यूशन, अब मुझे एक अच्छा उपाय मिल गया है इसका। क्या मिल गया? पांचवें आखिरी स्टेंजा में कह रहा है मुझे इसका एक अच्छा उपाय मिल गया है। एंड आई स्माइल टू हियर द क्रैश, अब मैं मुस्कुराया ये सुनकर, क्रैश जो बर्बादी हुई है उसको देखकर। देन आई चेक इट आउट द विंडो, और तब मैंने विंडो से उसको झांका। चेक का आपका होता है जो बोलते हैं टर्न आउट। अब मैं उस खिड़की से घूमा, अब मैं वहां से मुड़ा। एंड इट लैंडेड इन द ट्रैश, और उसके बाद मैंने पाया कि वहां सब कुछ वर्थलेस, बिना किसी काम के था। मतलब आखिरी स्टेज आपने कहा कि अब मुझे इसका अच्छा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। मैं मुस्कुराया ये सुनकर, जो कुछ वहां क्रैश जो भी बर्बादी हुई थी। देन आई चेक आउट द विंडो, अब मैं जहां बैठा हुआ था वहां से मैं घूमा। एंड उसके बाद मैंने वहां पे क्या देखा कि वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, ठीक है। तो यही है कि कंप्यूटर ने मेरे होमवर्क को खाया। आखिर में पता नहीं लग पा रहा था कि इसमें था क्या, वो पोएट की मिस्टेक की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नोट्स मैं आपको भेज चुका हूं, क्वेश्चन आंसर सब नोट कर लीजिएगा। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड हैव ए